Okay, so starting from where we have left in the last lecture. In the last lecture, if you remember, I have told you some characteristics of mixtures. Then I have told you some types of mixtures, that is solid, liquid, and solid, liquid, and liquid. Today we will be starting the new topic, that is characteristics of mixtures. Means when you see a mixture, what details you see, how can you identify that whether it is a compound or a mixture. So what are the characteristics of mixture? First of all, the components. What are components? I have already told you. वो चीज़ें जिनसे मिलके mixture बना है. So the components are loosely held together. There is no chemical bond between them. They are loosely held together, and you can pick them up and separate them. Suppose I add wheat and I add rice, you can separate wheat and rice by picking them up, and they retain their individual properties. Suppose if I add water and sugar, so water will be that solution which is made is sweet, so that means sugar also is having its own property. And suppose I add some black pepper to it, this solution, then also black pepper will also have its bitter taste. Thus all the components which are there have their own properties in the mixture. No definite set of properties. यहाँ पे जो definite set of properties हैं वो हैं आपका boiling point and melting point. Suppose if I say that boiling point of water is 100 degree, तो ये जो 100 डिग्री है ये किस वाटर का है पता है आपको? प्योर वाटर का, जो बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है. लेकिन अगर उस पानी में मैं थोड़ा नमक मिला दूँ तो व्हाट विल हैपन, दैट बॉइलिंग पॉइंट विल ईदर इंक्रीज or decrease in different solutions. Got it? So it has got no definite set of property. मिक्सचर की आप प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती हैं. किस पे डिपेंड करती हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर मिक्स्ड इन द मिक्सचर, द प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दोज. इफ आई ऐड मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, suppose I add more sugar to water, it will become more sweeter and its boiling point and melting point may change accordingly. Components of mixture can be separated by simple physical method. What are simple physical method? Simple physical methods are evaporation, then distillation, then sieving, that we will study later in this chapter. So now we will see one activity where you will come to know that how these properties differ in a solution. I have taken this 1 cup and I have added water to this 1 cup. So this is 1 cup water. In all the 3 cups, that is first cup, second cup and third cup, I have added water, equal amount of water. Now in the first cup I have added 1 spoon of sugar, in this I have added 2 spoon of sugar, in this I have added 3 spoon of sugar. So what will happen? Now in cup 1 it will be sweet, but it will be less sweet than 2. In cup 2, the sweetness will be less than cup 3. Why? Because the amount of sugar is more in cup 3 than cup 2 and than cup 1. Got it? That means the amount of sugar which we have added, although it is a mixture, but all the 3 mixtures, that is 1, 2 and 3, have different taste because the properties are different. They have got different set of properties because of the quantity of sugar in it. तो जहाँ पे इस तरह के मिक्सचर को, जहाँ पे एक दोनों चीज़ आपस में बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती हैं और एक मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती हैं, जिसमें हम अलग अलग शुगर को नहीं देख सकते, वाटर को नहीं देख सकते, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. So the mixture which is formed by sugar and water, or salt and water, or honey and water, or alcohol and water, where both the components mix together, dissolve together to give a uniform mixture, is known as solution. तो याद रखेंगे, solution is always homogeneous, it is never heterogeneous. क्योंकि heterogeneous में क्या होता है? Dissolve नहीं होता है, तो इसलिए heterogeneous solution नहीं होते हैं. Solution हमेशा कैसे होते हैं? Solutions are always homogeneous. जो चीज़ कम है उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जो चीज़ ज़्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया, पूरा का पूरा मिक्स हो गया अच्छे से. तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन. सो व्हाट इज अ सॉल्वेंट? इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट इज डिज़ोल्व टू मेक अ सॉल्यूशन. ठीक है, जिसमें आप सॉल्यूट को मिलाते हैं वो सॉल्वेंट, जो मिलाते हैं वो सॉल्यूट.
The substance which is added and dissolved in a solvent is called a solute. अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो solute है या solvent है, तो quantity पे depend करेगा. जिसकी less quantity होगी वो solute और जिसकी ज़्यादा quantity होगी वो solvent. Okay. Now solution, the homogeneous mixture of water or any other solvent and a substance soluble in it is called a solution. तो homogeneous आ गया जो मैंने अभी बताया था, that solution is always homogeneous. So whenever you prepare a homogeneous mixture in any of the solvent, या तो water ले लें या कोई भी solvent ले लें, बहुत सारे solvents हैं, alcohol is also solvent. तो कोई भी solvent अगर हम लेते हैं जिसमें कोई चीज़ mix हो सकती है उसको solvent बोलते हैं. तो उसके अंदर कोई भी जो substance आप डालते हैं जो उसमें dissolve हो जाता है अच्छे से, उसको हम solute बोलते हैं. और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. नाउ लेट्स सी सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर में टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, उनके बीच में क्या नहीं होता, केमिकल फोर्स नहीं होता है उनके बीच में. ओके, दे आर लूजली पैक्ड, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम. मिक्सचर्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मीन्स कि इतना ही इसमें शुगर आएगी या इतना ही इसमें वाटर आएगा, ऐसा फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि हम मिक्सचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. सपोज इफ आई वांट टू ड्रिंक मोर स्वीट आई विल ऐड मोर शुगर टू इट. सो माय composition ऑफ द मिक्सचर may change. What is composition? Composition is amount of solvent and solute. So it can change in a mixture. Suppose I have made a mixture of rice and sugar and some honey to it. I want to eat it sweet. So the amount of sugar or amount of honey can increase according to my taste. So it does not have a fixed composition. Specific set of properties, boiling point, melting point, it is not fixed in mixture. Same thing, melting and boiling point of mixture is not fixed. Mixtures can be heterogeneous or homogeneous, but solution can always be homogeneous. Please remember this. Solution is a type of mixture, okay, but it is a homogeneous mixture. So type of mixture which is homogeneous is known as solution, in which one solvent is there and one solute is there. The constituents are loosely held. जो भी constituent है वो डाला है जिसको हमने mix करने के लिए, mixture बनाने के लिए, उनके जो particles हैं they are loosely packed, they are not chemically bonded. We can separate them by hand picking also. Okay, तो लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे water और salt का मिक्सचर है उसमें आप हैंड पिक नहीं कर सकते. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन विच वी विल स्टडी in this chapter later. But most of the mixture, if they are solid and it is heterogeneous, we can pick the constituent with hand also. So we can separate them because they are loosely held, loosely packed. Formation of mixture does not involve any energy change. Whenever a mixture is made, suppose you are adding salt and water, it will not become hot automatically or it will not become cold automatically, but in chemical reactions where compounds are formed, it may become hot or it may become cold according to the reaction. So formation of mixture does not have any heat exchange, energy exchange in the form of heat or light. Now let us see the comparison of mixtures with compound. Now in this activity what they have done, they have taken a mixture of iron and sulfur. Iron is black in color, iron is black, sulfur is yellow in color, right. I have added one spoon of iron here and I have added 1 spoon of sulfur here. Now iron can be attracted by magnet, okay, and sulfur can be dissolved in a compound known as carbon disulfide. Got it? So that means we have two different things which react differently. We have iron which can be attracted by a magnet, and we have sulfur, and sulfur can be dissolved in a carbon disulfide. When we have made a mixture here, a mixture of iron and sulfur, that means 1 spoon of iron and 1 spoon of sulfur, and then I bring a magnet here, I will see that all the particles of iron will get attracted towards the magnet,
एंड सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड, सल्फर यहाँ पे छूट गया पीछे, यानी दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन्ड है। और इस सल्फर को अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड में डालूँ तो वो डिज़ोल्व भी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, ये यहाँ पे एक मिक्सचर के फॉर्म में है, बिकॉज मिक्सचर है इसीलिए दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। आयरन के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और सल्फर के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बोथ हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़ इन अ मिक्सचर। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस वाले मिक्सचर को हीट कर दिया। जैसे ही मैंने हीट किया तो ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन गया जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। अ ब्लैक मास, ब्लैक मास मतलब बड़ा सा ब्लैक सा पीस बन गया, जो कि अब यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। नाउ आयरन एंड सल्फर हैव केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड नोन एज आयरन सल्फाइड। अब जब इस काले वाले मास के पास मैं मैग्नेट लेके आई तो वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। जब मैंने इस ब्लैक मास को कार्बन डाइसल्फाइड में डाला तो मैंने देखा कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब मैग्नेट से भी अट्रैक्ट नहीं हुआ और कार्बन डाइसल्फाइड से डिसॉल्व भी नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये जो ये कंपाउंड बना है आयरन सल्फाइड, ये बिल्कुल इसमें अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ना आयरन की प्रॉपर्टी है ना सल्फर की प्रॉपर्टी है। सो इट इज़ क्लियर दैट नाउ अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कंपाउंड इज formed. First it was in form of mixture where no chemical change has happened, both have their individual properties, that is magnet property also iron had, carbon disulfide property also sulfur had, but after this compound आयरन और सल्फर अपनी दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखाएंगे और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसकी अपनी नई प्रॉपर्टीज होंगी. So this is what comparison of mixture with compound. Let's see the formation of carbon dioxide. Now this is carbon. Carbon is a black color solid, okay, and this is oxygen. What is oxygen? It is a gas. तो आपको दिख नहीं रही है, गैस दिखती नहीं है ना, इनविजिबल है. तो इसके अंदर गैस है. अब आप ये देखेंगे कि when these two combine together chemically combine करेंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक क्या होगी, गैस होगी. वो उसमें कहीं भी कार्बन का आपको ब्लैकनेस नहीं नज़र आएगी. सॉलिड है ये ना, सॉलिड है, तो आपको कभी भी कुछ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं नज़र आएगा. सो यही होता है कि जब कंपाउंड बनता है तो उसके पास ना कार्बन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी. आप बोलेंगे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस है. और कैसी गैस है? ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग में हेल्प नहीं करती है. यानी उसके पास ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना कार्बन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है. उसके पास अपनी एक न्यू प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी. और क्यों है न्यू प्रॉपर्टी? क्योंकि वो एक कंपाउंड है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न द पॉइंट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस वेयर मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस. सबसे पहला पॉइंट, एक प्योर है एक इम्प्योर है. कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस, जबकि मिक्सचर्स कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी होमोजेनियस ऑल्सो, दे कैन बी heterogeneous also. Then a compound has fixed composition, means suppose water is formed, so it will always be 2:1 का ratio रहेगा, 2 hydrogen and 1 oxygen. So they have got a fixed composition. जबकि mixture had got no fixed composition because you can change the amount of 2 substance or 3 substance which are mixing to make a mixture. Properties of components are changed during the formation of compound. जो पहले प्रॉपर्टी थी आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था, सल्फर वाज डिसॉल्विंग इन कार्बन डाइसल्फाइड, वो सब नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं. बट मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट. जो भी चीज़ें मिक्सचर में होंगी वो सब अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगी. अगर आप उसमें मिर्च डालेंगे तो मिर्च का टेस्ट आएगा, नमक डालेंगे तो नमकीन टेस्ट आएगा, मीठा डालेंगे तो मीठा टेस्ट आएगा, लेमन डालेंगे तो खट्टा टेस्ट आएगा. ऑल विल हैव देयर ओन set of properties in the mixture. Components of compounds can be separated only by chemical means. Suppose I want to separate hydrogen and oxygen from water, तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि हमने उसको फिल्टर कर दिया तो अलग हो गया, या उसको हमने डिस्टिलेशन कर दिया तो अलग हो गया, इवेपोरेशन कर दिया तो अलग हो गया. इट कैन ओनली बी डन बाय केमिकल मेथड. ओके, लेकिन कंपाउंड्स के साथ, मिक्सचर्स के साथ ऐसा नहीं है.
मिक्सचर्स को आप आराम से फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। देन लास्ट वन, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का हमेशा एक फार्मूला होगा। वाटर का देखो फार्मूला है क्योंकि कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है क्योंकि वो कंपाउंड है, और जो हम सॉल्ट खाते हैं घर में, सोडियम क्लोराइड, वो भी एक कंपाउंड है, उसका भी फार्मूला है। बट मिक्सचर्स, शिकंजी का कोई फार्मूला नहीं है ना, और नमकीन जो आप खा रहे हैं उसका कोई फार्मूला नहीं है, और जैसे आप सॉल्ट वाटर बना रहे हैं तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, शुगर वाटर बना रहे हैं तो उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो दैट मीन्स मिक्सचर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट differences, you have to learn them, all the differences you have to learn. Let's see whether water is a compound and air is a mixture. Why we say that water is a compound? सबसे पहले आ जाता है water का formula है H2O, but air का कोई formula नहीं है। ओके, ये देखो लास्ट पॉइंट, water is represented by a formula, air cannot be represented by a formula. So let's start. Water is a compound, air is a mixture. Water is made up of hydrogen and oxygen in a fixed proportion by mass. That means 2 hydrogen and 1 oxygen. इसका मास और इसका मास फिक्स्ड है। हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, हमेशा फिक्स्ड रहेगा इसमें। लेकिन एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, बट दे आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वाई दे आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन? बिकॉज इन सिटीज़ में आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा हो जाता है, एयर में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, जबकि गांव में, विलेजेस में, ऑन हिल्स यू हैव वेरी प्योर एयर, तो उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा। शहर की हवा का कॉम्पोजिशन अलग है, गांव की हवा का कॉम्पोजिशन अलग है, बिकॉज जो भी चीज़ें उसके अंदर मिक्सड है उसका अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरीज मतलब चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Properties of water are completely different from those of its element. Hydrogen is a gas, oxygen is a gas. Oxygen helps in burning. हाइड्रोजन खुद बर्न हो जाती है, लेकिन इनसे मिलके जो बनता है वाटर, वो किस लिए यूज़ होता है? आग को बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ होता है। दिस शोज दैट वाटर डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इवन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर देयर। जब न्यू प्रॉपर्टी होंगी तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया आपका कंपाउंड। ओके, लेकिन एयर में क्या है? एयर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करती है? नाइट्रोजन इनर्ट गैस है ना, उसको मतलब आग लगने से बचाती है, और जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करती है। तो नाइट्रोजन अपना रोल प्ले कर रही है, ऑक्सीजन अपना रोल प्ले कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, जो कि अपना पार्ट प्ले कर रही है ना। तो सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स ऑफ गैसेज हैं, दे आर शोइंग देयर प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स दे हैव रिटेन्ड देयर प्रॉपर्टीज। उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं। रिटेन मतलब बची हुई है। सो दिस वे वाटर इज अ कंपाउंड एंड एयर इज अ मिक्सचर।